Okay, so Vinay and Sunay are friends. Vinay and Sunay, two persons are there. So the subject in the question tag will be they. Okay, and this helping verb is taken with not in a short form. Okay, in a short way, so it becomes aren't they. Now, what is the second rule? The question tag of a negative sentence, the question tag of a negative sentence is affirmative. Means if the sentence is already in a negative format, you can see, okay, the sentence is in a negative format, so the question tag will be in an affirmative format. Okay, that means in a question tag you will not find not, or the short form of not is not found in a question tag when there is a negative sentence. You see, she does not make a noise. You already have a helping verb and you put it here. Not is not required to be put in this question tag, and this subject is taken here, she. So it becomes does she. You see, I don't drink wine. Don't, the do word has been taken here and I is taken here, so it becomes do I. I am not, you see, I am not, I just talked about this earlier in the first video. I am not, so you will put am I, not are I. So here the rule works, okay, but there it was an exception. If there is I am, okay, you will write aren't I question mark, but if there is I am not, you will simply write am I. Okay, you are not laborious, are you? So these are the examples you can go through. Very simple examples are these. Okay, you must pay attention to this third rule. I have typewritten these all letters in bold. Why? Because these make you confused. See, when there is neither, nor, no, not, never, none, no one, nobody, nothing, you are sure that the sentence is negative. But, well, these words also make a sentence negative. Means whenever few, little, hardly, rarely, scarcely or seldom is used in a sentence, the sentence becomes negative, whether these words have been used or not. अगर उसमें not हो ना, अगर उसमें not नहीं भी है, never भी नहीं है, कोई भी ऐसा negative word भी नहीं है, तो भी ये जो words हैं, because of them the sentence becomes negative. ये ध्यान रखना. तो यहीं पे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. सो ये यहाँ पर देखो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, वी हैव नो फ्रेंड्स. नो है इसलिए नेगेटिव है ऑलरेडी, तो वही रूल आएगा सेकेंड वाला रूल. ठीक है, जो आपको मैंने बताया. यहाँ पे भी देखो नो ऑलरेडी है, तो सेकेंड रूल आपको अप्लाई करना है. यू कैन सी दे हैव नथिंग, ऑलरेडी नथिंग वर्ड इज़ देयर, दैट्स वाई दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस, एंड हियर द क्वेश्चन टैग इज़ इन अफर्मेटिव format. Okay, nobody is perfect, nobody denotes negative, that's why it is affirmative. Question tag is affirmative. But what about this sentence? There is no word such as not, never, ऐसा कोई word नहीं है. देखो, a barking dog seldom bites, तो आपको क्या लगेगा, इसमें तो कोई ऐसा नेगेटिव वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, seldom, and that's why the whole sentence before comma is अ नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, सेल्डम का मतलब भी वही होता है, हार्डली, ठीक है, स्केर्सली, कभी कभी, शायद ही, ऐसा. तो दैट्स वाई आई हैव पुट द क्वेश्चन टैग इन अफर्मेटिव फॉर्मेट. ओके, यहाँ पे भी नॉट नहीं है, इधर भी नॉट नहीं है, पर ये क्या बता रहा है, नेगेटिव नेगेटिविटी ऑफ द सेंटेंस ये बता रहा है. इसकी वजह से ये पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव वे में लिखा गया है क्वेश्चन टैग. ऐसे बहुत सारे, जैसे नथिंग तो चलो ठीक है, ऑलरेडी नेगेटिव बता रहा है, तो आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ चलो यहाँ पर हमको क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव रखना है. लेकिन यहाँ पर देखो फ्यू लिखा हुआ है, ये ध्यान रखो, फ्यू
फ्यू जब भी लिखा हो तो ध्यान रखने का कि फ्यू कभी भी नेगेटिव मीनिंग शो करता है। देखो ए फ्यू और फ्यू में बहुत डिफरेंस है, दोनों का मतलब सेम होता है लेकिन दोनों का यूज़ सेम नहीं है। ए फ्यू जब यूज़ करते हैं आप तो वो पॉजिटिव मीनिंग शो करता है, और फ्यू यूज़ करते हैं आप तो वो नेगेटिव मीनिंग शो करता है, तो ये नेगेटिव है। और कैसे शो करता है मैं आपको अभी बताया था। फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम टू अटेंड द क्लास, हैव दे क्यों नेगेटिव वे में नहीं लिखा है क्वेश्चन टैग को, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव बता रहा है, इसलिए अफर्मेटिव में ही रहेगा। अब मैं बता देता हूँ कि ए फ्यू और फ्यू में क्या डिफरेंस है। अगर मैं ऐसे बोलूँ फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम टू अटेंड द क्लास, इसका मतलब बहुत ही कम, थोड़े से ही स्टूडेंट क्लास अटेंड करने आए, इसका मतलब काम चलेगा नहीं, एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है। बट इफ़ आई से ए फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम टू अटेंड द क्लास, तो इसका असर पॉजिटिव जा रहा है कि कुछ तो बच्चे आए जिनसे मतलब क्लास चल सकती है, क्लास अटेंड करने आए हैं, तो पॉजिटिव मीनिंग शो हो रहा है। ठीक है, तो ए फ्यू पॉजिटिव और फ्यू नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर ये इसके नेगेटिव होने की वजह से ये क्वेश्चन टैग क्या है, अफर्मेटिव फॉर्मेट में है। ठीक है, नाइदर नेगेटिव है वो, इसलिए अफर्मेटिव। लिटिल देखो फ्यू के जैसा ही लिटिल है, देखो ए फ्यू या फ्यू ये किन के लिए यूज़ होता है, काउंटेबल नाउन्स के लिए। इफ़ आई से ए फ्यू बेंचेस या फ्यू बेंचेस तो चलेगा, मैं ऐसा नहीं बोल सकता लिटिल बेंचेस या ए लिटिल बेंचेस। ठीक है, तो मैं लिटिल या ए लिटिल का यूज़ कहाँ करूँगा, ए लिटिल या लिटिल का यूज़ मैं किसके लिए करूँगा, अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे वाटर, ये काउंटेबल नहीं होते हैं, यू कैन काउंट वाटर। ओके, तो अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आप ए लिटिल या लिटिल का यूज़ करते हैं। इनका भी सेम पर्पज़ होता है, ए लिटिल पॉजिटिव मीनिंग में शो करता है और लिटिल नेगेटिव मीनिंग शो करता है। ठीक है, आई नो लिटिल अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ा सा ही पता है, मतलब उससे काम नहीं चलेगा मेरा, तो ये नेगेटिव मीनिंग शो कर रहा है। अगर ये ए लिटिल लिखा होता इससे तो क्या मीनिंग होता, आई नो अ लिटिल अबाउट यू का मतलब मैं थोड़ा सा तो जानता हूँ तुम्हारे बारे में, मतलब काम चल सकता है, पॉजिटिव मीनिंग आ रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव होने की वजह से देखो ये क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आया। यू गेट दिस? ओके, आई रेयरली इज ऑल्सो अ वर्ड विच डिनोट्स नेगेटिव मीनिंग एंड दैट्स वाई it is this question tag is affirmative. Now you get it? Note the words a few and a few have a positive meaning if they are used in a sentence, they are affirmative sentences. Okay, ये दोनों यूज़ होंगे तो affirmative है, और सिर्फ few या सिर्फ little यूज़ हो तो वो नेगेटिव है। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। therefore their question tags are negative। अगर ये यूज़ होते हैं तो इनके question tag नेगेटिव आएंगे। ये देखो आई हैव अ लिटिल मनी, मतलब थोड़ा सा तो पैसा है, काम चल जाएगा। हैवंट आई, ये पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव आएगा। रूल सेम है बट क्या है, थोड़ा आपको डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, हैवंट आई, अ फ्यू पॉजिटिव मीनिंग इसलिए नेगेटिव रहेगा, हैवंट। क्लियर? लेट्स सी द फोर्थ रूल। ये फोर्थ रूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। See the question tag of an affirmative imperative sentence, remember affirmative तो है ही पर imperative sentence होगा। imperative मतलब ऑर्डर वाले सेंटेंस, ऑर्डर कमांड करने वाले सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। ठीक है, तो imperative sentence वो भी affirmative is both affirmative. What did you understand? The question tag of an affirmative imperative sentence is both affirmative and negative. ओके, मतलब अगर क्वेश्चन टैग आपको यूज़ करना है किसी भी अफर्मेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए तो दोनों आंसर हो सकते हैं। देखो दोनों आंसर नेगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव, यहाँ पर रूल्स दोनों साथ में काम कर सकता है। देखो स्विच ऑन द रेडियो, ये भी अफर्मेटिव है और इम्पेरेटिव भी है। इसका आंसर इसका जो क्वेश्चन टैग है वो अफर्मेटिव भी है, और देखो सेम मैंने सेंटेंस यूज़ किया है स्विच ऑन द रेडियो, मैंने नेगेटिव भी यूज़ किया है, तो दोनों वेज राइट हैं। क्यों? बिकॉज ये अफर्मेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए मैं दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख सकता हूँ। बोथ आर राइट, nobody can prove you wrong because you are already right. ठीक है, please give me money, will you? This is a request. Request also comes in the category of imperative sentence. Okay, तो प्लीज़ गिव मी मनी, इसमें कहीं नेगेटिव मीनिंग तो आ नहीं रही है,
तो भी इसका जो आंसर है वो अफर्मेटिव में है, यानी कि इसका जो क्वेश्चन टैग है वो किस में है, अफर्मेटिव में। देखो इसमें ये भी वही चीज़ है, सेम है, ये भी वही है, ये भी वही है, बट मैंने इसका जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव रखा है, ठीक है। तो दोनों आंसर राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, विल यू, वोंट यू, दोनों सिंपल है और दोनों राइट है, कोई भी एक आंसर आपको लिखना रहेगा, ठीक है। वोंट यू किसका शॉर्ट फॉर्म है, विल नॉट का, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, वोंट यू। फिफ्थ रूल देखते हैं, द क्वेश्चन टैग ऑफ अ नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस इज अफर्मेटिव, इट इज़ ऑलवेज अफर्मेटिव, एंड क्या होगा अफर्मेटिव, विल यू होगा। देखो इसमें क्या था, आप विल यू भी यूज़ कर सकते थे, वॉन्ट यू भी, अगर अफर्मेटिव है तो, इंपेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो। लेकिन अगर इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका आंसर हमेशा अफर्मेटिव ही आएगा, विल यू आएगा, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल डोंट, देखो ज़्यादातर इंपेरेटिव सेंटेंस डोंट से ही स्टार्ट होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो डोंट ओपन द विंडो इंपेरेटिव सेंटेंस है लेकिन नेगेटिव है, तो इसका आंसर यानी क्वेश्चन टैग कभी भी इसका आएगा अफर्मेटिव फॉर्मेट में ही। डोंट स्पिट देयर हियर, विल यू, डोंट स्विच ऑफ द लाइट, विल यू, ओके, डोंट बी लेट टुमारो, विल यू, डोंट मेक अ नॉइज़, विल यू। तो इस तरह से ये रूल काम करता है। ये मैं PDF भी आपको इसका सेंड करने वाला हूँ, सो दैट यू कैन स्टडी इट ट्वाइस थ्राइस, और इसका रिविजन भी कर सकते हो आप बाद में। ओके, नाउ द सिक्स्थ रूल is what, if an affirmative imperative sentence is used to express the sense, that means idea of more urgency, ठीक है, या moral necessity, the negative question tag won't you is used। कभी कभी क्या होता है, imperative sentence जो कि affirmative भले होता है, ठीक है, और लेकिन उसमें क्या अर्जेंसी वाली फील, एक तरह से एक अर्जेंसी वाली फीलिंग होती है, कोई चीज़ बहुत जल्दी करनी होती है, कोई आइडिया होता है, मोरल नेसेसिटी होती है, तब आप वॉन्ट यू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे रिमेंबर टू शट द विंडो, अभी क्या है, अर्जेंसी वाली बात हो गई, रिमेंबर टू शट द विंडो, तो आप वॉन्ट यू का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग द सम्स, वॉन्ट यू, ये कैसी बात हो गई, बी केयरफुल, एक तरह से आपकी मोरल नेसेसिटी वाली बात हो गई, वाइल सॉल्विंग द सम, तो वॉन्ट यू का यूज़ तब आप कर सकते हो, किसके लिए, अफर्मेटिव स्टेट। सिर्फ आपको वॉन्ट यू का यूज़ करना पड़ेगा, विल यू का यूज़ नहीं कर सकते। उसका रीज़न है कि ये इनमें से कोई भी एक डिनोट कर रहा है, या तो कोई आइडिया या तो मोरल अर्जेंसी, जिस आई मीन मोर अर्जेंसी या तो मोरल नेसेसिटी, ठीक है। रूल नंबर 7, इफ़ द वर्ब यूज्ड इन द इंपेरेटिव सेंटेंस डिनोट्स का मतलब एक्सप्रेसेस और द सेंस ऑफ रेप्रीमेंड, यानी कि डांट रहे हैं अगर आप किसी को, ठीक है, उसको डांट रहे हैं, भगा रहे हैं, तो द क्वेश्चन टैग इज़ कांट यू। नहीं होते हैं आप, जैसे पेरेंट्स डांटते हैं बच्चों को, तो एक करेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पर, वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो कांट यू का यूज़ करना होता है जब कोई भी डांटता है, स्कोल्ड कर रहा होता है, ठीक है। तो कांट यू कैसे, यूज़ योर ओन माइंड, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही है, अफर्मेटिव भी है, इंपेरेटिव सेंटेंस भी है, लेकिन इससे क्या मालूम पड़ता है, यूज़ योर ओन माइंड, यानी कि कोई डांट रहा है, रेप्रीमेंड कर रहा है, स्कोल्ड कर रहा है, रिब्यूक कर रहा है, ठीक है, तो कांट यू। यूज़ योर ओन बुक, कांट यू, ठीक है, कोई डांट के ऐसे बोले तो आप उसको कांट यू से मतलब क्वेश्चन टैग बना सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर आप लोग को अगर वॉन्ट यू का भी यूज़ करना हो, ठीक है, तो भी आप यूज़ कर सकते हो, ओके, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इतना डिफरेंस बच्चों को मतलब एक तरह से जाने दिया जाता है, नेगलेक्ट करके उनको इसके लिए मार्क्स मिल जाते हैं, इतनी डीपली बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। बट आपको ये मैं एक क्लैरिटी के लिए बोल दे रहा हूँ कि अगर रेप्रीमेंड करते हो तो आप कांट यू का यूज़ करते हो। इफ़ द इंपेरेटिव सेंटेंस बिगिंस विद लेट अस और लेट्स, सेम है दोनों, ठीक है, ओके। इट डिनोट्स द, इट का मतलब द इंपेरेटिव सेंटेंस डिनोट्स प्रपोजल या तो सजेशन, ठीक है। लेट या लेट्स वाले सेंटेंसेस आपको कभी भी प्रपोजल या सजेशन शो करते हैं, तो उनका कभी भी क्वेश्चन टैग होगा शैल वी, शैल वी, ठीक है।
देखो, let us dance together, shall we? Let us help her, shall we? Let us do this work, shall we? Let us go there, shall we? Let's read Gita, shall we? Let's read the Gita, shall we? Rule number 9. If the imperative sentence begins with let me, let him, let her, let them, let Sam, let Vinita, so the question tag will be will you. Okay? See. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सजेशन नहीं है, ये तो क्या है, एक तरह का अलाउंस मिल रहा है आपको. अलाउंस का मतलब एक आपको परमिट मिल रहा है, परमिशन मिल रही है. ठीक है, कोई आपके लिए एक तरह से परमिशन ले रहा है या तो दे रहा है. तो यहाँ पे कोई सजेशन नहीं है. ओके, यहाँ पे तो सिंपली कोई आपको अलाउ कर रहा है. लेट मी या तो अलाउ करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है. लेट मी डू दिस वर्क, विल यू? लेट हिम गो, विल यू? लेट देम डू देयर वर्क, होमवर्क, विल यू? ओके, लेट विनीता वॉच टीवी, विल यू? तो लेट से कोई भी ऐसे हो, लेट अस हो तो आपको शैल वी का यूज़ करना है. और ऐसे कोई भी हो, लेट मी, लेट हिम, लेट देम, लेट विनीता, लेट सैम, कोई भी ऐसा हो तो आपको विल यू का ही यूज़ करने का. तब नहीं देखने का कि यहाँ पर मी का यूज़ हुआ है तो मैं आई करूँ, ऐसा नहीं. यहाँ पर हिम का यूज़ हुआ है तो मैं ये हिम के लिए यहाँ पर हिम लिख दूँ, नहीं, या तो ही लिख दूँ, नहीं. ओके, क्योंकि लेट आ गया स्टार्टिंग में. अगर यहाँ पे देम है तो मैं यहाँ पर यू ही रखूँगा, ना कि दे रखूँगा, दे नहीं रखूँगा. दिस इज़ रॉन्ग. ओके, क्योंकि लेट के साथ आया है. लेट विनीता है तो मैं आज शी नहीं लिख दूंगा. ठीक है, तो यही सही होगा. रूल नंबर 10. इफ द वर्ब यूज टू इज यूज इन द सेंटेंस, द नेगेटिव वर्ब क्या होगा? ये या तो डिडंट का यूज़ करने का आपको, या तो यूजंट. ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो. दोनों सही है, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो अगर ये आया तो सेंटेंस में. और वैसे भी क्या डिनोट करता है? पास्ट हैबिट, मतलब सिंपल पास्ट टेंस होता है और हैबिट भी डिनोट करता है, यूज टू. तो उसके लिए क्वेश्चन टैग यही होगा. ही यूज्ड टू कम हियर, यूजंट ही, या तो वही चीज़ देखो यहाँ पर, ही यूज्ड टू कम हियर, डिडंट ही. दोनों आंसर राइट है, कोई भी एक लिख सकते हो आप, सेम सेंटेंस. ठीक है, ये देखो दे यूजंट. अब देखो ऑलरेडी नॉट का यूज़ किया है, तो जब नॉट का यूज़ किया हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. और यहाँ पे भी वही है, दे यूजंट कम हियर, तो आप ऐसे लिख सकते हो. यानी वही रूल. अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, अगर अफर्मेटिव है तो आपने क्या यूज़ किया? नेगेटिव. और अगर नेगेटिव ऑलरेडी है तो आपने क्या यूज़ किया? अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग. रूल यहाँ पर सेम आएगा, फर्स्ट और सेकंड रूल दोनों अप्लाई करेंगे आप. और यहाँ पर देखो यूज्ड दे लिख सकते हैं, या तो आप डिड दे. ज़्यादातर लोग ये यूज़ नहीं करते, पहला वाला डिड दे ज़्यादा यूज़ करते हैं. और दे इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे है, अगर ही लगा रहता तो यहाँ पर ही आता. ठीक है, सिंपल. नाउ यू सी, ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये थोड़ा आपका हायर लेवल का हो जाता है. लेकिन ये क्वेश्चन मेकर्स कभी भी ये नहीं सोचते कि हायर लेवल का है कि नहीं. दे हैव टू आस्क, आई मीन दे आर सपोज टू आस्क दिस ऑल्सो. तो आप ये देख सकते हैं. अब इसमें देखो लिखा हुआ है द मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स. ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, मतलब इनका पूरी तरह से हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग वर्ब. और मार्जिनल है क्योंकि इनका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम लोग हेल्पिंग वर्ब के, और ये कभी कभी मेन वर्ब में भी यूज़ होते हैं. ठीक है, तो अगर डेयर नॉट या डेरंट ऐसा लिखा हो, या नीड नॉट या नीडंट लिखा हो, तो आपको क्या करने का? तो अब उसका क्वेश्चन टैग कभी भी क्या होता है? अफर्मेटिव ही होता है. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है. देखो यहाँ पर ही डेरंट कम हियर, डेयर ही नीडंट गो देयर, नीड ही, नीड आई, सॉरी आई नीडंट गो देयर, नीड आई. ही नीड नॉट वर्क हार्ड, नीड ही. ठीक है, ये ध्यान रखना. अब वही चीज़ देखो यहाँ पर, उसका यूज़ मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़ होगा. देखो मेन वर्ब, कभी कभी डेयर और नीड मेन वर्ब का काम करते हैं. अभी तक तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे थे ना, इसलिए आपने क्या किया यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब का काम किया, तो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में ले लिया ना डेयर को या नीड को, और सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रख दिया. लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहे हैं. जब मेन वर्ब का काम करें तो ध्यान रखने का, मेन वर्ब कभी भी टेंस बताता है आपको कि कौन सा टेंस है वो. यहाँ से आपको नहीं मालूम पड़ रहा था कि ये कौन सा टेंस है. नीड नॉट कभी नहीं बताएगा आपको ये कौन सा टेंस है. डेयर नॉट कभी नहीं बताएगा कौन सा टेंस है. लेकिन अगर ये डेयर्स आ गया है तो ये बताएगा आपको. डेयर के साथ क्या लग गया? एस. आपको स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था मैंने, कि किसी भी वर्ब के साथ अगर एस या एस लगता है तो वो सिंपल प्रेजेंट शो करता है. ठीक है, तो देखो यहाँ पर एस या एस लगा तो सिंपल प्रेजेंट शो करे तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे डज का.
और ये नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो हम यहाँ कर देंगे क्वेश्चन टैग नेगेटिव फॉर्म में कर देंगे। तो ये हो गया डजंट ही। ओके, अभी देखो वैसे ही शी नीड्स, नीड्स भी क्या बता रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसलिए क्या होगा डजंट शी। अब नीडेड, नीडेड क्या बता रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, नीड का सेकंड फॉर्म नीडेड, तो ये पास्ट टेंस बता रहा है। पास्ट टेंस बताया तो क्या करने का, डिड का यूज़ करने का। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं था, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर डिडंट आएगा। इट्स वेरी सिंपल। ओके, अभी डोंट डेयर, तो डोंट डेयर, ये डेयर यहाँ पर मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पर उसी तरह से डोंट का यूज़ हुआ है, यहाँ पे डू नॉट, दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए यहाँ पे डू यू और डू दे, यहाँ पे यू था इसलिए यू, दे है तो दे, पर डू दोनों में आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डोंट था और यहाँ पे डू नॉट है, दोनों तो सेम होते हैं, तो नेगेटिव तो दोनों है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये जितने भी एग्जांपल्स हैं यहाँ तक आप लोग खुद रिफ़र करोगे, और जो नहीं आए वो आप मुझसे व्हाट्सएप में मेरा नंबर है, उस पर आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन देते हुए। फॉर एग्जांपल इफ़ योर नेम इज़ रवि, सो यू विल टाइप रवि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लास डिवीज़न दिस जो भी है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेट मी सी हाउ मेनी रूल्स आर लेफ्ट आउट, आई थिंक येस सर। सो आई एम जस्ट गोइंग टू वाइंड दिस वीडियो अप, then I'll send you another video. See, if the words there, one, this, that, these, those are used, okay, as the subjects of a sentence, the words there, one, it, they are used as the subject of a question tag. ठीक है, अगर there यूज़ हुआ है तो there आएगा, one यूज़ हुआ है तो one आएगा, this यूज़ हुआ है तो it लगा सकते हो। हाँ, it लगा सकते हो, this की जगह पर आप क्या लगा सकते हो, it। ठीक है, कुछ लोग दिस भी लगाते हैं बट इट ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, दैट भी हो तो उसके लिए भी इट लगा देने का। जब आपका शॉर्ट वे में काम चल जा रहा है, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ा तो अच्छी बात है। दीज का यूज़ हो रहा है तो आप दे करोगे, क्योंकि दीज क्या शो करता है, प्लूरल, और दे उसके लिए परफेक्ट है। दोज भी क्या शो करता है, प्लूरल, तो दे उसके लिए परफेक्ट है। ठीक है, बट व्हेन द वर्ड्स वन, दिस, दैट, दीज, दोज आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, दे आर एडजेक्टिव। ध्यान रहे, हाँ, ये बहुत डिफरेंस ध्यान रखना है। ये अभी सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, बट यही वर्ड्स वन, दिस, दैट, दोज, दीज, ये सब अगर किसी नाउन के पहले यूज़ हो तो ये पूरा सब्जेक्ट बनता है, दोनों वर्ड को मिला के। दिस मैन पूरा सब्जेक्ट बन रहा है, दिस पेन पूरा सब्जेक्ट बन रहा है। अब दिस पेन क्या है, तो दिस पेन तो कोई एक पर्टिकुलर थिंग हो गया ना, तो थिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट। दिस मैन यानी मैन से क्या मालूम पड़ रहा है, येस वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, तो पर्सन मैन, मैन क्या डिनोट कर रहा है, मेल पर्सन, तो ही मैंने यूज़ किया। वन गर्ल, गर्ल से क्या मालूम पड़ा, फीमेल पर्सन, तो शी मैंने यूज़ किया। तब मैं यहाँ पे वन यूज़ नहीं करूँगा, दिस विल बी रॉन्ग, बिकॉज वन इज़ नॉट अलोन वर्किंग एज अ सब्जेक्ट, इट हैज़ अनदर वर्ड ऑल्सो, और इस वर्ड की वजह से पता चलता है कि दैट सब्जेक्ट इज़ अ फीमेल पर्सन, तो फीमेल पर्सन के लिए मैंने शी का यूज़ किया। दिस पेन इज़ यूजलेस, दिस पेन इज़ यूजलेस, ये तो मैंने बता दिया आपको। दैट बॉय, दैट के साथ बॉय का यूज़ हुआ है, तो मैं आप दैट के लिए यूज़ नहीं करूँगा इट, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि हु इज़ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज़ एक्चुअली अ मेल पर्सन, तो मैं ही का यूज़ करूँगा। दीज बुक्स, दीज बुक्स, दीज, ऑब्वियसली मैं दीज के लिए दे तो यूज़ करता ही था, और दीज बुक्स भी आ गया तो उसके लिए भी दे का यूज़ तो होगा ही। ठीक है, ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट रूल। In the next video. Thank you.